کارکنان اور چونکہ لیڈرز کی تو سائیکی ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے, تھوڑے سے کول مائنڈیڈ ہوتے ہیں, لیکن کارکنان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. نہیں لیکن ملک صاحب آپ کی بات بھی ٹھیک ہے, تو یہ پروگرام الگ الگ جگہ پر ہیں. جاتلا میں ایک پروگرام ہے, دوسرا فاروق حیدر صاحب نے کل پہنچنا ہے میرپور میں, ایک رابطہ آفس ہے ان کا, یہاں پہ ان کا افتتاح کرنا ہے. بعد ازاں جو ارشد غازی صاحب کے آفس کا افتتاح کریں گے. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے جو مرکزی رہنما امیدوار ہیں جو نون لیگ کے یہاں سے ٹکٹ کے, چودھری محمد سعید صاحب کے آفس میں کل انہوں نے شام کو وہاں بھی کوئی عشائیہ وغیرہ وہاں پہ بھی شرکت کرنی ہے. پرسوں پھر مارننگ میں ان کا ایک ناشتہ ہے, چودھری راجہ محمد یعقوب ہیں پنجیڑی کے, ان کی طرف سے. تو یہ کافی سارے پروگرامات ہیں ان کے جو تشکیل دے دیے گئے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی آپ کی رائے تھی, آگے آپ نے کہا کہ جیسا کہ بعد میں کیا گیا ہے, تو اس میں رواداری کی سیاست کو فروغ دیا جانا چاہیے. تو اپنے اپنے پروگرامات ہیں ان کے, تو پرسکون ہو جائیں گے وہ. ایسا کیونکہ اس سے پہلے تو قبل نہیں ہوا, کیونکہ جب ایسا کافی مرتبہ ہو چکا ہے کہ بہت ساری پارٹیوں کے فنکشنز ایک ہی دن منعقد ہوئے ہوں, لیکن کوئی بھی ایسی یہاں پہ صورتحال نہیں بنی. مطلب کوئی بری بات نہیں, آپ نہیں ماضی میں ایسا کچھ نہیں ہوا, تو میں امید کرتا ہوں کہ فیوچر میں بھی ایسا کچھ نہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ کرے کہ ہماری امن و امان کی صورتحال ٹھیک ٹھاک رہے, کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو. الیکشنز ویسے بھی قریب قریب ہیں. سامعین آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں, اور ایس ایم ایس کرنے کا طریقہ ہے اپنے موبائل فون کے رائٹ میسج آپشن میں جائیے, 90 ٹائپ کریں, اسپیس دیں, اپنا پیغام لکھیے اور بھیج دیجیے 1313 پر. مجھے کہتے ہیں عارف ملک, پروگرام آپ سن رہے ہیں روز لائیو ٹاک, اور یہ ہے روز نیٹ ورک. اور جی ہمارے ساتھ ابھی تھوڑی دیر میں رزاق مغل صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے, جو کہ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ دیں گے کہ ایگزیکٹلی وہ ایز اے نیوٹرل کیا دیکھ رہے ہیں کہ جاتلا کے ایگزیکٹلی حالات کیا ہیں. اینی وے جناب, فیس بک کے لیے آئی ایم ویری مچ تھینکفل ٹو ایوری بڈی آؤٹ دیئر کہ آپ لوگوں نے اتنا رسپانس دیا. اور میں تو آج بڑا حیران ہو رہا تھا, فیس بک فین پیج جب ہم نے دیکھا جس پہ ہم نے پروگرامز بھی اپلوڈ کر دیے گئے ہیں, اور ڈیلی بیسس پہ ہر پروگرام آپ کو فیس بک پہ ملے گا. آپ ڈیلی بیسس آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی بہت امپورٹنٹ آپ گفتگو مس کر گئے ہیں, تو آپ یقینی طور پہ فیس بک لاگ ان کر سکتے ہیں. اور فیس بک پہ ہمیں ڈھونڈنے کے لیے اٹس ویری سمپل, آپ فیس بک میں لکھیے روز لائف ٹاک, ROSE اسپیس LIVE اسپیس TALK, یہ اسپیلنگ ہے. آپ اسے ہمیں ڈھونڈ سکتے ہیں, بآسانی آپ ہمیں ڈھونڈ سکتے ہیں. اس وقت رزاق مغل صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, آل دا وے فرام جاتلا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رزاق مغل صاحب, ابھی تو پدی اور پدی کے شوربے کی بات بھی ہوگی, پتہ نہیں آپ سن رہے تھے یا نہیں سن رہے تھے. جی میں سن رہا تھا. جی یہ تھوڑی سی ہیٹ بڑھتی نہیں جا رہی؟ جی دیکھ لیں, بس یہ ہیٹ تو کافی بڑھتی جا رہی ہے. سیاسی جو ہے وہ جنگ جاری ہے, امتحانات بھی جاری ہیں. صحیح. اچھا, مجھے جلسے کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا کہ ایز اے نیوٹرل کیا آپ کے پاس اپڈیٹ ہیں؟ جی آئی ایم آن ایئر اور آئی ایم لائیو ود ہم. اسٹوڈیو سے باہر مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وہ لائیو آ چکے ہیں, آپ لے سکتے ہیں کال. رزاق مغل صاحب دیکھیں ہماری ٹیم کتنا پیچھے چلتی ہے, ہم ٹیم سے ایڈوانس چلتے ہیں. میں پہلے ہی آپ سے بات کر رہا ہوں. اینی ویز کیا حالات و واقعات ہیں, کیا فضائیں ہیں, فضائیں کیا کہہ رہی ہیں جاتلا کی؟ فضائیں جناب جو ہے نا فضائیں پینافلیکس لگی ہوئی ہیں, جھنڈے وغیرہ لگا دیے گئے ہیں, پنڈال تیار ہو چکا ہے. صحیح. ابھی بس مہمانوں کا انتظار ہے. وہ کل 9 بجے کا سنا ہے کہ استقبال ہو رہا ہے, اور صاحب میر پر پہنچ رہے ہیں. نہیں ظاہر مہمان تو کل ہی آئیں گے نا, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مہمان ابھی آ جائیں تو یہ تو مشکل ہے نا. یہ تو آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں. اچھا, کتنے لوگ ایکسپیکٹ کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر, اور چونکہ یہ پہلا ان کا جو شو آف پاور والا جلسہ ہے وہ پہلا ہو رہا ہے, تو کتنے ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کی کہ کتنے لوگ آ سکتے ہیں اس میں؟ یہ تو کافی حد تک انہوں نے اس پہ ورک کیا ہے, لوگوں کو بتایا ہے. میرے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق تو کافی جو ہے نا ہائی جنٹری تک بھی انہوں نے سب کو بلایا ہے, سب کو مدعو کیا ہے کہ جلسے میں شرکت کریں. اور حلقے کے حوالے سے تمام لوگوں کو, یہ جو مغربی حصہ ہے کا شرقی ہے, سب کو بلایا گیا ہے کہ آپ جلسے میں شرکت کریں. صحیح. اچھا رزاق, اس کے علاوہ بات کریں گے مخالفین کے حوالے سے. مخالفین تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ مخالفین ہی ہوتے ہیں, تو مخالفین اس وقت کیا سوچ رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ PMLN کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, راجہ نوید اختر گوگا صاحب ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد چوہدری رخسار صاحب فارمر منسٹر ہیں, اور ان کی بھی کوئی اتنی کمزور پوزیشن نہیں ہے, ان کی بھی بڑی مضبوط پوزیشن ہے, ڈیولپمنٹ کا کافی انہوں نے کام کیا ہے. تو ارشد صاحب کو ایج بیرسٹر سلطان محمود چوہدری صاحب کے. تو مخالفین کیا سوچ رہے ہیں ابھی, یا کیا پلان کر کے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے؟
प्लान ज़ाहिर है वो भी किसी बड़ी शख्सियत को बुलाएंगे, इसी तरह का वो भी शो करने की कोशिश करेंगे। बाकी रही बात यहाँ के लोकल लोगों की, ये तो लोगों में अभी ये सोच आ गई है कि ये शो की हद तक है सब कुछ। तकरीबन मैंने आज जितने लोगों से भी मिला हूँ सब कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा है जी। जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो ये कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। नून लीग वाले इसकी वो आपने लफ्ज में ही सारी जो है ना वो बातें कर दी हैं कि मुखालफीन जो होते हैं मुखालफीन है उनको खैर की तवक्को तो नहीं की जा सकती। सही है, लेकिन वो काउंटर करने के लिए सम टाइम मुखालफीन कोई अपने प्रोग्राम भी तरतीब देते हैं ना, उस वाले से मैं बात कर रहा था। अभी तक तो यहाँ पे ज़ाहिरी तौर पे कोई चीज नजर नहीं आ रही कि उन्होंने कोई प्रोग्राम दिया हो हल्के में किसी बड़े इवेंट का या बड़े जलसे का। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। रज़ाक मुगल साहब हमारे साथ मौजूद थे, जातलान से हमसे बातचीत कर रहे थे और जलसे की उन्होंने अपडेट दी। जी आप बात कर रहे थे कुछ सामिन, हम थोड़ी देर में आपकी लाइव कॉल्स भी ओपन करेंगे और इस्लामाबाद हम चलेंगे थोड़ी देर के बाद। आज थोड़ा सा ज्यादा देर के लिए चलेंगे और हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे कि इस्लामाबाद क्या देख रहा है, आजाद कश्मीर में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद किस निगाह से देख रहा है मीरपुर को, इस्लामाबाद किस निगाह से देख रहा है मुजफ्फराबाद को, और पलंदरी, रावलाकोट, कोटली, नीलम, ये तमाम इलाके हैं, इनको किस निगाह से इस्लामाबाद देख रहा है। जी बिलाल, रज़ाक मुगल ने बताया कि तैयारियां तो हो चुकी हैं, पंडाल भी सज चुका है और बहुत सारी फ्लैक्सेस भी लग चुकी हैं और इलेक्शन के मौके पे फ्लैक्सेस और इस किस्म के तो बिजनेस ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाते हैं, तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, रज़ाक साहब ने ठीक कहा कि तैयारियां अरूज पर हैं। मैंने तो प्रोग्राम के जब आगाज में आपने मुझसे पूछा मैंने तो तभी इनका स्केड्यूल सारा बता दिया था। मलिक साहब, जो सबसे अहम बात है इन दिनों में जो आज मौजू बहस बनी रही है, जो कल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है जो आजाद कश्मीर के, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुजफ्फराबाद सही है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है, कुछ दिनों से शोर था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के बाज़ रहनुमाओं ने मीडिया में ये भी कहा कि 25 मई तक इंतखाबात हो जाने चाहिए, जबकि ये काम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, उनका इलेक्शन अनाउंस करना कि वो इलेक्शन अनाउंस करें, उनकी डेट करें, या प्राइम मिनिस्टर एजे के। तो उन्होंने कल वाजे कर दिया इस तमाम जो तशवीश का शिकार किया जा रहा था कुछ लोगों की जानब से। चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर ने यह वाजे किया कि जो इंतखाबात हैं वो मुकर्ररा मुद्दत पर ही होंगे, जैसा कि आइन आजाद कश्मीर का यही इजाजत देता है। आइन और कानून जो आजाद कश्मीर के आइन 1974 के तहत आजाद कश्मीर में जो वजीर आजम है, जो वजीर आजम जो वक्त का प्राइम मिनिस्टर है, वो भी उसी वक्त इलेक्शन अनाउंस कर सकता है कबल इस वक्त जब खित्ते में हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई हो। ठीक है, मसलन जो लिखा हुआ है जिसमें अगर कोई गैर मुल्की फौज दाखिल हो गई हो, गवर्नमेंट। अभी सामने को पता चलेंगे, अभी हम चकसवारी भी चलेंगे, चकसवारी में हम अपडेट्स लेंगे। जी जहाँ पे आबिद साहब हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे। जी आप बात कंटिन्यू रखिए। हुकूमत की रिट कायम ना रही हो, वहाँ पर कोई ऐसे हालात में जाकर इंतखाबात कबल इस वक्त कराए जा सकते हैं, लेकिन ये सूरत हाल पैदा की जा रही थी। और दूसरा आइन ये कहता है कि इंतखाबात जो आइनी मुद्दत पूरे होने के 1 माह के अंदर अंदर कराए जा सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर और जो अंदरून खाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो सीनियर रहनुमाओं की ऑफ द रिकॉर्ड डील हुई है, उसमें यह कहा गया है कि वो किसी भी सूरत में कबल वक्त इंतखाबात की सपोर्ट नहीं करेंगे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर की ये बिल्कुल ख्वाहिश है, वाज़ेह ख्वाहिश है कि वो वफाक में मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी हुकूमत का जो इस वक्त फायदा उठाकर आजाद कश्मीर से क्लीन स्वीप करके अपनी गवर्नमेंट बना दें। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ये चाह रही है कि वो अभी नो मौलूद है, वो पूरी तरह पांव पे खड़ी हो जाए, और फिर ये इस तरह से इन दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग जारी है। सही है, जो इंतखाबात के हवाले से बिल्कुल सही है। अभी हम चकसवारी चलते हैं और चकसवारी के हालात जानते हैं। कैप्टन सरफराज साहब आजकल ज़ाहिर है नाराज हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से क्या लाए अमल का ऐलान करेंगे, उस वाले से भी हम आपको बताएंगे। और चौधरी अब्दुल मजीद साहब का बड़ा मजबूत हल्का है चकसवारी। आबिद हुसैन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदा चकसवारी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आबिद साहब बताइएगा कि ओवरऑल क्या सूरत हाल है सियासी तौर पर चकसवारी में? सर इस वक्त चकसवारी में सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं। चौधरी अब्दुल मजीद इस वक्त सबसे ज्यादा सरगर्म हैं। सही, उनकी सियासी कैंपेन उनके साहबजादे कासिम मजीद भरपूर तरीके से चला रहे हैं। ठीक है, ज़ाहिर हालात चौधरी अब्दुल मजीद के हक में हैं। अगर हल्का नंबर 2 की वैंस बरादरी में इताद हो जाता है तो फिर कैप्टन सरफराज खान चौधरी अब्दुल मजीद को टफ टाइम दे सकते हैं। सही, साबिक उम्मीदवार बराए कानून साज असम्बली चौधरी आरफ इन दिनों खामोश हैं, जबकि चौधरी अब्दुल रहमान एडवोकेट ने बाज़ाब्ता इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है।
आजाद उम्मीदवार, उनकी जी हाँ ठीक है, मगर उनकी सियासी पोजीशन कमजोर है। और कैप्टन सरफराज खान इस वक्त मुस्लिम नून के प्लेटफॉर्म से टिकट लड़ने का सोच रहे हैं, लेकिन अभी हतमी फैसला तो नहीं किया ना? जी अब हतमी फैसला नहीं किया उन्होंने। सदर आजाद कश्मीर से रात को कैप्टन सरफराज और कर्नल रिटायर्ड नसीम जो कि साबिक वजीर हैं, इनको बरतरफ कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने कुछ दिन कबल, और उनकी मुलाकात भी हुई है सदर आजाद। मुलाकातें तो बड़े लेवल पे चल रही हैं जनाब, अभी जोड़ तोड़ का सिलसिला असल तो अभी शुरू होगा। लेकिन जैसा कि नून लीग में जाने के हवाले से सिकंदर हयात साबिक प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर उनके रहायशगाह पर बिल्कुल कहते हैं, काफी तवील मुलाकात रही थी, वो फाइनल नहीं हुआ, फाइनलाइज अभी तक नहीं हो सके मामला, लेकिन वो आबिद साहब कह रहे हैं कि सोच रहे हैं वो। जी आबिद साहब जारी रखिए। ये सर, और इनकलाबी साहब की जो है उनकी पोजीशन भी कमजोर ही है, क्योंकि वो भी सिर्फ इस्लामगढ़ और उसके साथ वाले हल्के में जो है ना वो अपनी खाती मुहिम चला रहे हैं। सही, जबकि चकसवारी में उनसे चकसवारी पिंडकोट और कनेल की जो यूनियन काउंसिल हैं उनसे उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उनकी पोजीशन सियासी बड़ी कमजोर है। सही है। अब साहब ये बताइएगा कि कैप्टन सरफराज साहब के हवाले से लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, लोग क्या सोच रहे हैं? जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का उनको कश्मीर काउंसिल का टिकट ना मिल सका, उसके बाद लोगों में क्या रिएक्शन था, लोग क्या सोच रहे थे, क्या प्लान कर रहे थे? सर उनकी बयानबाजी की वजह से पहले तो उनकी लोगों की हमदर्दियां कैप्टन साहब के साथ थी, लेकिन जब उन्होंने मुख्तलिफ प्लेटफार्मों पे मुख्तलिफ बयान दिए हैं तो उसकी वजह से जो है ना नजरियाती जो कारकुन हैं वो उनसे नाराज हैं। किस किस्म के बयानात? यही कि मेरी पार्टी की जो खिदमात थी उनको नजरअंदाज किया गया और मुझे कश्मीर काउंसिल का टिकट नहीं दिया गया, और ये पैसों के वो जो है कश्मीर काउंसिल के टिकट जो फरोख्त किए गए हैं। तो लोगों को ये कहना है कि उन्होंने ये गलत बयानबाजी की, उन्होंने उनको बात ये नहीं करनी चाहिए थी। जी हाँ, जो नजरियाती कारकुन हैं वो उनसे सख्त नाराज हैं, और जो बाकी कारकुन हैं जाहिर है जो उनकी बरादरी है और बाकी जो वोटर सपोर्टर हैं वो तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ज्यादा चांसेस क्या नजर आ रहे हैं आपको कि आप PMLN में जाएंगे या फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ ही सहारा लेंगे? सर बाबसूरत राय से तो यही पता चला है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून से जो इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। ठीक है, हाँ, क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ चकसवारी से मौजूद थे आबिद हुसैन साहब और हमें चकसवारी के हल्के से आगाह कर रहे थे। अभी हम थोड़ी देर में इस्लामाबाद चलेंगे जहां पे हमारे साथ इरफान कुरैशी साहब मौजूद होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे और इरफान कुरैशी साहब से थोड़ी देर में हम यकीनी तौर पे उनको हम कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम फिर लाइव कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करेंगे। आप हमें लाइव कॉल भी कर सकेंगे और लाइव कॉल के हवाले से आप अपनी पसंदीदगी और नापसंदीदगी के हवाले से भी आप बता सकते हैं। ज़ाहिर है हर बंदे की अपनी पसंद और नापसंद होती है। राइट, आप सुन रहे हैं रोज FM 90, मुझे कहते हैं आरिफ मलिक, प्रोग्राम है रोज लाइव टॉक और इस्लामाबाद से हमारे साथ इरफान कुरैशी साहब मौजूद हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त, बड़े मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो कुरैशी साहब, आप ऑन एयर हैं। इरफान कुरैशी साहब आप ऑन एयर हैं, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? जी मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज। जी मैं शायद अच्छा जी। कुरैशी साहब थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि कल शो ऑफ पावर होने जा रही है, पहली दफा बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब की तरफ से इस आने वाले इलेक्शंस के लिए मियां मंजूर अहमद भट्टू साहब को बुलाया जा रहा है। मुखालफिन बहुत नाराज हैं, मुखालफिन कुछ नाजेबा गुफ्तगू भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? इलेक्शन कैंपेन तो शुरू हो गई है मलिक साहब, अगर जो इलेक्शन मेरा ख्याल है जून के आखिरी हफ्ते में ही होंगे या जुलाई के पहले हफ्ते में होंगे, लेकिन इलेक्शन मुहिम जो है वो शुरू होगी और पहला जलसा पीपल्स पार्टी का शो ऑफ पावर है ये। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो वजारत उज़्मा या सदारत के उम्मीदवार भी हैं वो कर रहे हैं, तो वो यकीनन पूरी मेहनत करेंगे। अपने दोनों हल्के हैं उनके, चौधरी अरशद साहब का और एक उनका, तो वजीर अमूर कश्मीर भी जा रहे हैं वहाँ, तो पूरी मेहनत से वो कोशिश करेंगे कि ये शो उनका कामयाब हो। और यकीनन ये बात भी सामने नजर आ रही है कि शायद वो दोनों सीटें निकाल जाएं, पर मुकाबला किससे होता है ये बात देखनी है वहाँ। सही है साहब। अच्छा, मुकाबला किससे होता है ये बड़ी आप इनकम्प्लीट बात छोड़ गए और बड़े सारे क्वेश्चन मार्क्स थे इस बात के पीछे। क्या मकसद क्या है आपका ये कहने का कि उनका मुकाबला किससे होगा? मतलब सर बात यह है कि मुकाबला जो है वो वहाँ पे चौधरी रुखसार साहब तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो तो नायल हो गए हैं। नहीं, वो तो कहते हैं मैं लड़ूंगा। वो किस तरह लड़ेंगे? जब एक दफा अगर वो लड़ेंगे भी तो दूसरी सूरत में यह है कि मुस्लिम का वोट बैंक तकसीम हो गया है। नवीद गोगा साहब है वहाँ पे मुस्लिम लीग